यूपीएससी इज नॉट आस्किंग एग्जैक्टली कि वैल्यूज बता दो, ये बता दो, ठीक है, वो वाले क्वेश्चंस बहुत कम हो गए. दे आर कोरिलेटिंग इट टू अदर सब्जेक्ट्स ऑफ जीएस. दे आर आस्किंग यू एनवायरमेंटल एथिक्स, दे आर लिंकिंग इट टू सोसाइटी, दे आर लिंकिंग इट टू करंट अफेयर्स. सो you can't also study it as an isolated subject. So be very careful when you're writing your answers to see that you're meeting the demand. Now what I've done is I've used a very GS based approach in writing this answer. कि हमने क्वेश्चन देखा, उसमें 3-4 कीवर्ड्स दिखे, सबको हमें एड्रेस करना है, तीनों को मैंने कर दिया. बट एथिक्स वाला पार्ट जो है, इट काइंड ऑफ गॉट स्वेड समवेयर इन द प्रोसेस. यू हैव टू यूज व्हाट ये की टर्म्स में बोलती, करेज ऑफ कन्विक्शन, करेज इन इटसेल्फ, ब्रेवरी, ठीक है, मॉरल एंड एथिकल इंटेग्रिटी. दिस इज व्हाट आई मीन बाय कीवर्ड्स ऑफ एथिक्स व्हिच यू यूज टू आंसर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस. व्हाट आई सजेस्ट इज आंसर राइटिंग ज्यादा करो एथिक्स की, पढ़ाई कम करो एथिक्स की. द मोर यू राइट एथिक्स, द मोर यू अंडरस्टैंड द आर्ट ऑफ राइटिंग एथिक्स. जो हमारा एथिक्स है ना, डोंट जस्ट रीड इट एज एन आइसोलेटेड सब्जेक्ट, ठीक है. इनकॉर्पोरेट GS 1 to 3 इन योर एथिक्स. इट विल बेनिफिट यू ग्रेटली. इट विल सेव यू अ लॉट ऑफ टाइम व्हाइल यू आर राइटिंग योर आंसर्स, ठीक है. आजकल इफ यू एनालाइज लास्ट 2 to 3 years के पेपर्स, यूपीएससी इज नॉट आस्किंग एग्जैक्टली कि वैल्यूज बता दो, ये बता दो, ठीक है, वो वाले क्वेश्चंस बहुत कम हो गए. They are correlating it to other subjects of GS. They're asking you environmental ethics. They're linking it to society. They're linking it to current affairs. Okay, so you can't also study it as an isolated subject. You have to incorporate GS in it, but you don't have to forget that it's at the end of the day it's an ethics paper. ठीक है, so आपको ethics तो डालनी पड़ेगी ही पड़ेगी उसके अंदर in one way or the other. Okay, so this is one of the older questions which I've written. I wrote it last year when I was preparing, but I'll tell you a few mistakes that I've made in it and one of the few good things about it. Okay, and then I'll show you one of my recent papers which I've done. Okay, so this question talks about increasing instances of sexual violence against women. Is my writing legible? It sometimes cannot be. Okay, okay. So despite legal provisions, the number of such incidences are on the rise, suggest some innovative measures to tackle this issue, right? So here I started my answer with an NCRB data. This is where I included my GS to start the introduction. Okay, so you don't have to always write an ethics based intro. You can start it with a quote also, you know, कि गांधी जी ने बोला था, या I don't know अम्बेडकर जी ने बोला था कि जब तक violence against women खत्म नहीं होगा तब तक the society will not be able to rise, something like that. So you can start with a quote also. It's absolutely okay. ठीक है. Now they have not asked for causes here, but I've answered it. So what I'm trying to tell you, it's an older question which I've written. I could have given less weightage to this because this is not exactly the main demand of the question. The main demand of the question is innovative measures बताने हैं to do it. So I could have done it. I could have just made a hub and spoke model यहाँ पे and short में मैं बता सकती थी, ठीक है. But मैंने थोड़ा बड़ा कर दिया. But इसके अंदर भी I have tried to incorporate ethics in it, ठीक है. For example, patriarchal nature is हमारा society का point, substantiated with a data point. Now here is your ethics का point, failure of inculcating values of equality and compassion towards all. ठीक है, then there's again a GS का point, then there's kind of a ethics का point कि we are not gender sensitization वगैरह नहीं हो रही है, but this is very very long. ठीक है, इतने की need नहीं है. So I'm trying to kind of tell you कि जो मैंने गलतियाँ की आप ना करो, ठीक है. So you don't implicit demand को अगर address करना है, it should not take 1/3 of your first page. ठीक है, आपकी जो main demand of the question है, that should start from the first page itself. ठीक है. Now this is the part which they've asked. Now what the mistake we do is, उन्होंने पूछा आप innovative measures बताओ, मतलब आप कुछ innovative बताओ जो अभी तक नहीं हुआ है, ठीक है. Here also I have written things which have already been done. So technically मैं इस question में demand meet ही नहीं कर रही हूँ जो उन्होंने पूछी है. I have probably mentioned it somewhere here, ठीक है, or maybe not even that. ठीक है, so I would not even get I would not get more than 2 or 2.5 in this question despite writing so much because the main demand of the question is not being met, right? So be very careful when you're writing your answers to see that you're meeting the demand. Now what I've done is I've used a very GS based approach in writing this answer. ठीक है, कि हमने question देखा, उसमें 3-4 keywords दिखे, सबको हमें address करना है, तीनों को मैंने कर दिया, ठीक है. But ethics वाला part जो है, it kind of got swayed somewhere in the process. ठीक है. Now I'll kind of go to the more recent answer which I've written.
Okay, so this is one of the recent answers I've written. It says that unconscious biases in parenting continue to shape gendered experiences in India. Do you agree with this view? Okay. Now, this question seems a very society-like question, but it's an ethics question. ठीक है. अब दिमाग में सीधा आपके सोसाइटी के पॉइंट्स आएंगे विच इज फेयर, जो लिखने भी हैं, बट यू हैव टू काइंड ऑफ लिंक इट विद एथिक्स. ठीक है. सो हियर यहाँ मैंने वो ट्रेडिशनल डेफिनेशन बेस्ड अप्रोच अनकॉन्शियस बायस को एक्सप्लेन कर दिया कि क्या होता है और कैसे वो डेवलप होती है इन शॉर्ट, in like 3 to 4 lines of intro. Don't make your intros too long. 3 to 4 lines are more than enough. Otherwise वो बहुत खिंचे हुए लगते हैं. ठीक है. So now I've directly here started कि unconscious biases जो होते हैं, this is exactly what the question is asking, right? And you will notice I've written longer points here explaining each of my point. ठीक है. Which is what is important. ठीक है. Whether it be examples or whether it be the main point. If you can make a subheading, it's even better. If you can make a small heading here and then answer, that's also great. That was not really my writing style, but you can do it. So here, if you will see, I've also written care ethics. Ethics ka point bhi aa gaya. I have mentioned phallic stage, which is my optional ka point. I have and GS का भी ऊपर था, I think pink colorization कहीं लिखा था मैंने. I can't find it now. I think नीचे यहाँ पे. ठीक है. So that is unconscious biases. I have given another heading which says कि other factors also shape gendered experiences. And I've just written 2-3 points also. So it just shows that you are more aware कि सिर्फ unconscious bias से gendered experiences नहीं होते, और भी factors होते हैं which can lead to it. And here I have ended it with an SDG, which is again your GS का part. Okay, so what I'm trying to tell you is that integrate everything. Interlinking is very important in ethics. Don't isolate your answers to ethics अलग है, GS1 अलग है, GS2 अलग है, GS3 अलग है. I'll just show you another example if you guys want to see. Compassion और empathy का difference है. I think this is very basic, so I'm not showing that. I'll show more आजकल जैसे questions पूछ रहे हैं. ठीक है. So the current society is witnessing rising levels of intolerance. What are the consequences of this situation for personal well-being and for societal well-being? What can one person do at their personal level to become tolerant? Now this question can be divided into 3 parts. Personal well-being पे क्या फ़र्क है, societal well-being पे क्या फ़र्क है, and what we can do. Now you have, तुम्हारे पास लेकिन pages 2 ही हैं, so you have to divide your pages accordingly. ठीक है. Now they haven't asked causes for intolerance, so I have mentioned them in the intro. ठीक है. बिकॉज इंटॉलरेंस तुम डिफाइन क्या करोगे इसमें. ठीक है. वो इधर यू कैन मेंशन डेटा इसमें. ठीक है. और मतलब आई हैव डन कि मैंने कॉजेज लिख दिए इसके अंदर इन शॉर्ट. ठीक है. कि हेट स्पीच, फेक न्यूज, ला एटसेट्रा एटसेट्रा, एंड आई हैव गिवन एन एग्जांपल इन द इंट्रो इटसेल्फ. फिर देन यू राइट कॉन्सिक्वेंसेज बिकॉज दैट्स व्हाट दे हैव आस्क्ड कि कॉन्सिक्वेंसेज क्या ऑन पर्सनल वेलबींग. आई हैव मेंशन दैट एंड देन आई हैव मेंशन सोसाइटल कॉन्सिक्वेंसेज एंड देन आई हैव आगे मेंशन what can be done. Now another thing which is important is you don't need an example for each point. ठीक है. What we do is हर point के लिए example ढूंढने की वजह से हम अच्छे points कभी कभी नहीं लिखते हैं because we think कि हमारे पास इसके लिए example नहीं है तो हमें नहीं लिखना चाहिए. ठीक है. But if you are able to substantiate about 60 to 70% of your points with an example, it's more than enough. Rest you can write without an example also. It should be a good point तो मतलब impactful होना चाहिए. ठीक है. सो आई हैव रिटन सेल्फ एफिकेसी, सेल्फ एस्टीम कम हो जाती है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स, जो हम मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स पढ़ते हैं. ठीक है. आई हैव गिवन एन एग्जांपल हियर, आई हैव गिवन एन एग्जांपल हियर. बीच में मैंने नहीं दिया 1-2 में एग्जांपल. ठीक है. वो कितनी राइट्स के एग्जांपल दोगे ना, मतलब तो वैसे, बट यू कैन गिव मोर, ऐसा कुछ नहीं है. देन मेंटल हेल्थ चैलेंजेस, बिकॉज माई ऑप्शनल वाज साइकोलॉजी, तो क्लियरली आई कुड लिंक मोर उस चीज से. ठीक है. देन सोसाइटल कॉन्सिक्वेंसेज आ जाते हैं जिसके अंदर रेट्स ऑफ क्राइम, सोशल फैब्रिक ऑफ हार्मनी एंड ब्रदरहुड. दिस इज योर एथिक्स का पॉइंट. ऊपर वाला इज योर जीएस का पॉइंट. ठीक है. सो what I'm trying to tell you by this is that जब ऐसे questions आते हैं, don't just focus on GS or don't just focus on ethics. Combine them both. ठीक है. So that you seem like a very well balanced individual to them because that is what ethics is basically checking. ठीक है. So
आई थिंक दैट मेक्स सेंस। यहाँ मैंने एक भारत श्रेष्ठ भारत से कर दिया कि टॉलरेंस इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे यू कैन ऑल्सो मेंशन योर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स, DPSP is fundamental duties, fundamental rights. Please use them in your intros and conclusions for ethics also. It gives a very good impact. ठीक है, केस लॉज भी यूज कर सकते हो। ठीक है, आई हैव एक्चुअली यूज्ड इट, आई डोंट नो इफ इन दिस पेपर, बट मैंने यूज करे हैं एक आधी जगह। ठीक है, सो एथिक्स इज समथिंग विच रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ इंटरलिंकिंग। तुम जितना इंटरलिंक और जितना उसको होलिस्टिकली पढ़ोगे ना एथिक्स को, और जितना कम पढ़ोगे, इट विल बेनिफिट यू अ लॉट। ठीक है, बी वेरी कंसाइज इन एथिक्स, एंड व्हाट आई सजेस्ट इज आंसर राइटिंग ज्यादा करो एथिक्स की, पढ़ाई कम करो एथिक्स की। द मोर यू राइट एथिक्स, द मोर यू अंडरस्टैंड द आर्ट ऑफ राइटिंग एथिक्स। ठीक है, सो बिकॉज व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग, मैंने 2024 में आई गेव माय फर्स्ट अटेम्प्ट व्हेन आई कुड नॉट क्लियर माय प्रीलिम्स। एथिक्स वाज द फर्स्ट थिंग आई स्टार्टेड राइटिंग, एंड आई कंटिन्यूसली रोट इट फॉर, मतलब मैं एक आधा क्वेश्चन ही लिखती थी जीएस के बाकी चीज़ों के साथ साथ, बट आई वुड मेक श्योर कि मैं 3 दिन या 4 दिन इन अ वीक आई एम राइटिंग एथिक्स। ठीक है, एंड आई think that did benefit me greatly to improve what I was writing earlier to what I started writing now. Okay, so static based I think clear है, किसी को कुछ इसमें पूछना है so you guys can. ठीक है, so we can move on. So basically static में अभी what is important is interlinking, because that is what UPSC is asking and that is what UPSC expects. ठीक है, I think what it expects, nobody knows what UPSC expects, to be honest, बहुत opaque है, but I'm assuming that is what they expect. ठीक है, second we come to the code based questions which I think are the most challenging to deal with them all. मुझे भी सबसे challenging वही लगते थे, and I think I kind of understood how to work through them by the end of my preparation cycle when mains was just approaching. ठीक है, so now code based questions को आप दो तरीके से break कर सकते हो। ठीक है, I'll show you with examples also so it becomes easier to understand. Now ethics, code based questions को you can break it in two parts, two types से आप उसको break कर सकते हो। Now first is you can break the quote itself into two parts. ठीक है, आप पहला part of the quote address करो, फिर आप second part of the quote address करो। ठीक है, second thing that you can do is you can straight away jump into its relevance in the present context and you break it into personal relevance, societal relevance, national relevance and international relevance with examples. ठीक है, so this will make your life a lot easier when you're answering code based questions. Secondly, code based questions में जो भी whoever is the thinker or whoever is the philosopher जिसने वो quote दिया है, you don't have to write a lot about them in the introduction. ठीक है, कुछ एक लाइन का लिखना है लिख सकते हो, बट डोंट फोकस टू मच ऑन इट। आई यूज्ड टू डू दैट एंड इट यूज्ड टू कॉस्ट मी स्पेस एंड कोई वैल्यू एडिशन नहीं होती है उससे। सो आई विल जस्ट शो यू द कोड बेस्ड क्वेश्चंस ओनली डायरेक्टली। ऑल्सो ट्राई टू डाइवर्सिफाई योर प्रेजेंटेशन, आई यूज्ड टू डू दैट अ लॉट। मतलब मैं अलग अलग तरीके से, मैं बहुत क्लाउड्स बनाती थी और कुछ बनाती थी। सो यू विल सी अ लॉट ऑफ डायग्राम्स, डाइवर्सिटी ऑफ प्रेजेंटेशन इन इट, विच आई थिंक काइंड ऑफ sometimes helps because examiner gets bored, उसको बेचारे को इतनी कॉपीज पढ़नी है यार। ठीक है, so this is a code based questions. Two ways of building character, cultivating strength to challenge oppression and tolerate the resultant hardships that give rise to courage and awareness. Sardar Patel. ठीक है, अब this is what I mean. Sardar Patel was a valiant freedom fighter known as Steel Man of India. That is it. आपको पता है तो आप लिख दो, नहीं पता तो छोड़ सकते हो। ठीक है, who emphasized on the need for developing a strong character to live a successful and fulfilled life. So आपने कोट का सार बता दिया इसके अंदर। ठीक है, and you address the जो भी जो thinker है in very short. ठीक है, आपका इंट्रोडक्शन डन। नाउ इन दिस क्वेश्चन आई हैव ब्रोकन द कोट इनटू टू पार्ट्स। एक पहले मैंने कल्टिवेटिंग स्ट्रेंथ बता दिया है, एंड सेकेंड फिर मैंने करेज एंड अवेयरनेस बता दिया है। ठीक है, so now when you talk about cultivating strength to challenge oppression, so what does it mean? ठीक है, अब each जब भी वो पूछते हैं what does it mean to you or what it means in the present context. So that is what you have to write. So courage to stand up against wrong. So I have written a personal example. मतलब this is not exactly a personal example, but this is something which is on a personal level. ठीक है, it's not किसी officer का example or anything. It's a very basic example which everyone can relate to. I mean, everyone has been bullied or been a bully at some point in their life. Okay, so you can write a personal example like this. Then courage of conviction to do the right thing. Then India's abrogation of Article 370. बहुत सारा opposition हुआ, they still did it. ठीक है, bravery to raise. Now see,
you have to use what ये key terms में बोलती, courage of conviction, courage in itself, bravery, ठीक है, moral and ethical integrity. This is what I mean by keywords of ethics, ठीक है, which you use to answer different types of questions. If you'll have 20-30 such keywords, it will become a lot easier to just pen them down, वरना उस टाइम बहुत बैंडविड्थ जाती है सोचने में, एंड एथिक्स इज अ वेरी टाइम सेंसिटिव पेपर, ठीक है. डेफिनेटली आपका क्वेश्चन छूट जाएगा और यू विल कॉम्प्रोमाइज ऑन द क्वालिटी. आई फिनिश्ड माई एथिक्स पेपर 2 minutes अर्ली, ठीक है. I mean, I'm not meaning to boast, but I'm just saying that if you have ready-made templates for everything, it becomes very easy to answer things quickly in ethics. ठीक है. A lot of bandwidth goes in thinking what to write in ethics. ठीक है. सो आपके पास जितना ईजी चीज़ें होंगी अवेलेबल, आप उतना ईजिली उनको, आपके पास 30 वैल्यूज अगर याद हैं तो एग्जाम में 5 तो याद आ ही जाएंगी लिखने के लिए, ठीक है. दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. सो अगेन यहाँ पे जैसे मैंने एक इंडिविजुअल का एग्जाम्पल दे दिया, यहाँ मैंने नेशनल एग्जाम्पल दे दिया, यहाँ पर्सनल एग्जाम्पल दे दिया, यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम्पल दे दिया, ठीक है. सो दिस इज व्हाट आई मीन बाय हैविंग अ variety of examples in your answers. So this is what I meant. मतलब ये वाइसा वर्सा भी होता है कि डोंट मिस आउट ऑन अ पॉइंट जस्ट बिकॉज यू डोंट नो एन एग्जाम्पल, ठीक है, एंड डोंट मिस आउट ऑन एन एग्जाम्पल जस्ट बिकॉज यू थिंक इट्स बेसिक, ठीक है, लिख सकते हो, ठीक है. देन सेकेंड इज टॉलरिंग हार्डशिप, गिविंग राइज टू करेज एंड अवेयरनेस. अब यहाँ पे क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट बिल्ड्स resilience, that is adversity quotient, ठीक है. नेल्सन मंडेला आफ्टर स्पेंडिंग 26 years in jail, maintaining personal ethics at all times, ठीक है. सो यहाँ पे गिवन मूवमेंट ऑफ चिपको मूवमेंट, यहाँ पे भी मैंने लिखा है कि इट वाज फॉर एनवायरमेंट कंजर्वेशन, ठीक है. यू कांट जस्ट राइट चिपको मूवमेंट एंड लीव इट बिकॉज यू कांट अज्यूम द एग्जामिनर नोज व्हाट चिपको मूवमेंट इज. आई मीन आई नो दे आर वेरी वेल एजुकेटेड पीपल, दे विल नो, ठीक है, बट इट्स बेटर टू एक्सप्लेन इट इन जस्ट वन लाइन, ठीक है. सिमिलरली रोजा पार्क्स, ऑपरेशन अगेंस्ट ब्लैक्स, ठीक है. आई हैव डन दिस इन एवरी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है. सो अगेन यहाँ पे सेम हमारा विकसित एंड आत्मनिर्भर भारत कॉमन, बट यू कैन यूज इट हियर ऑल्सो, ठीक है. सो दिस इज वन वे यू कैन ब्रेक इट. आई डोंट थिंक दिस इज अ कोड बेस्ड क्वेश्चन. See, even this is a very GS based question. I'll just show it to you. कि with great power comes great responsibility. In present big tech headquartered in developed countries wield disproportionate influence over digital infrastructure. पूरा science and tech का question लग रहा है. Personal data and global narrative often prioritizing profit over ethical considerations. What ethical principles should guide such corporates in building a fair, inclusive and global digital framework? ठीक है. So I've written a very basic intro. See, हर क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से नहीं आता होगा, but what is important is you don't let the examiner know कि तुम्हें बहुत अच्छे से नहीं आता है, ठीक है. So that is what is important. Now, अब disproportionate influence है तो उसके साथ issue क्या है? I've just broken it down into on digital infrastructure, personal data, global narrative, picked the keywords from the question itself. ठीक है, उसके अंदर keywords लिख दिया. अब this is a question which I did not know about a lot. ठीक है, कोई नहीं पढ़ता है, कौन पढ़ के जाता है ethics में anyways, ठीक है. So यहाँ पे I have tried to use the keywords which I had. Moral disengagement, keyword. Failure for respect for autonomy, keyword. ठीक है. Creating filter bubbles, ठीक है. कुछ मैंने इसमें साइबर क्राइम वाला GS वाले पॉइंट्स लिख दिए, कुछ मैंने वो लिख दिए. पर्सनल डेटा, राइट टू प्राइवेसी, सीधा लिख सकते हो. ग्लोबल नैरेटिव्स, मोनोपोली, प्रोटेक्शनिस्ट मेजर, ठीक है. सो आई जस्ट पिक्ड अप कीवर्ड्स फ्रॉम द क्वेश्चन इटसेल्फ, आंसर्ड इट हियर इन द थिंग्स व्हिच यू नो, ठीक है. दैट इज इम्पोर्टेंट. अब एथिकल प्रिंसिपल्स पे आ जाते हैं जो उन्होंने पूछा है. अगेन मैंने सेकंड से स्टार्ट किया है, बट आई थिंक दिस इज ओके बिकॉज दे हैव गिवन अ वेरी लॉन्ग इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ एंड इफ यू डोंट एड्रेस दैट इट वोंट लुक गुड, ठीक है. सो थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी, अगर कभी इतना बड़ा सा इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ आ जाए तो आप ऐसे उसको कर सकते हो. देन आई वांट टू एथिकल प्रिंसिपल्स व्हिच शुड गाइड सच. ये अब एथिकल प्रिंसिपल्स तो सब कुछ वही होते हैं हमारे. कंपैशनेट कैपिटलिज्म as a categorical imperative. Now see, this is keywords. Categorical imperative is a keyword. Utilitarianism is a keyword. ठीक है. Plato's cardinal virtues जो हम पढ़ते हैं. So don't just read them thinkers वाले topic में, use them in your answers. This is what I meant जब मैंने कहा था I'll show it to you कि you use it in your examples. ठीक है, कि prudence, temperance and courage leading justice towards the developing nation. ठीक है. Welfareist approach, all of them are keywords, directly answer your ethics question while it being a science and tech based question, ठीक है.
आई हैव ऑल्सो मेंशन्ड श्री कृष्णन कमेटी जो हम पढ़ते हैं साइबर क्राइम के अंदर, तो यू कैन डू दैट. मतलब दैट इज व्हाट आई सेड, इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन्स, यूज जीएस बेस्ड नॉलेज, इट्स एब्सोल्युटली ओके, यू कैन डू दैट. So this is also code based question. Now I'll tell you what not to do. ठीक है, this is an old answer, तो मैं बस एक बार बता देती हूँ, then we'll move to case studies. Okay, so ये वो वाला ये, it's to awaken the people, it's the women who must be awakened. ठीक है, once she is on the move, the village moves, nation moves. What does this quote convey to you in the present context? Now this is how I used to write it earlier. पूरा जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में quote emphasize on the role of women in growth, blah blah blah. Quote talks about, मतलब बहुत बड़ा intro लिखा है, सिर्फ इतना लिख के आई कुड हैव डायरेक्टली स्टार्टेड ऑफ विद माई, हाँ ठीक है, आई कुड हैव इवन मेंशन्ड यू नो हमारा डीपीएसपी विच टॉक्स अबाउट फंडामेंटल ड्यूटी विच टॉक्स अबाउट रिस्पेक्टिंग वुमेन. डीपीएसपी में जिसमें वुमेन की बात होती है, आई कुड हैव इनकॉर्पोरेटेड दैट, आई वुड हैव एडेड वैल्यू इन द इंट्रोडक्शन. ठीक है, नाउ व्हेन इट टॉक्स अबाउट रेलेवेंस ऑफ अवेकनिंग वुमेन इन द प्रेजेंट, ठीक है, यू कैन टॉक अबाउट दिस, इज ओके, बट ये एम्पावर्ड वुमेन, एम्पावर्ड सोसाइटी, वाई दिस इज नॉट द राइट हेडिंग इज बिकॉज उसमें क्लियरली बोला है कि फैमिली अवेकन्स, विलेज अवेकन्स, नेशन अवेकन्स. इट्स बेटर टू ब्रेक योर क्वेश्चन इनटू फैमिली, विलेज, नेशन. ठीक है, सो इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस, कोर्ट में से ही पिक आउट योर कीवर्ड्स एंड आंसर अकॉर्डिंगली. ठीक है, कि फैमिली में क्यों इंपॉर्टेंट है, हेल्थ केयर इंप्रूव होगा, एजुकेशन इंप्रूव होएगी, फ्यूचर जनरेशंस इंप्रूव होंगे. ठीक है, उसके बाद विलेज के लिए क्यों इम्पैक्ट है, हेल्थ केयर, एडवोकेसी, आंगनवाड़ी, चाइल्ड मैरिजेस कम होंगे सोसाइटी के अंदर, ऑल ऑफ दैट. ठीक है, नेशन के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक ग्रोथ, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, वुमेन एम्पावरमेंट, ऑल ऑफ दोस थिंग्स. सो कोड बेस्ड क्वेश्चंस वेर गुड. ऑल्सो वन सजेशन, डोंट एंड और स्टार्ट योर कोड बेस्ड क्वेश्चंस विद द कोट. ठीक है, बिकॉज उन्होंने ऑलरेडी कोट दिया हुआ है, आप एक और कंक्लूजन में मे बी इफ यू आर नॉट बीइंग एबल टू फाइंड एनी अदर गुड कंक्लूजन, आप कंक्लूजन से मतलब कोट से एंड कर दीजिए, बट इंट्रोडक्शन में अवॉइड राइटिंग कोट्स एंड कोट बेस्ड क्वेश्चंस. ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू केस स्टडीज. ठीक है, द लास्ट पार्ट ऑफ दिस डिस्कशन. नाउ केस स्टडीज आर समथिंग विच कैन बी वेरी टाइम कंज्यूमिंग और इट कैन सेव यू टाइम इन द एक्चुअल एग्जाम बेस्ड ऑन योर अप्रोच. ठीक है, सो one thing is make ready-made templates for your case studies, जैसे मैंने बताया. ठीक है, it'll definitely save you time, at least 2 to 3 questions में you'll save a little bit of time because you'll have merits, demerits, all of that. Now when you write demerits and merits, don't write more than 3 merits or 3 demerits. ठीक है, you don't have to write a whole page for a single option के merits and demerits. 2 to 3 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए आपके. ठीक है, आपके मेरिट्स और डीमेरिट्स में भी कीवर्ड्स अगर आप डालोगे तो दैट्स अ गुड थिंग. ठीक है, अगर आप किसी चीज़ का डीमेरिट डालो तो उसमें क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस बहुत कॉमनली डाल सकते हो आप. ठीक है, कोई अच्छी चीज़ है तो यूटिलिटेरियनिज्म ब्रैकेट में, डिओन्टोलॉजी ब्रैकेट में, मीन्स वर्सेस एंड ब्रैकेट में. ठीक है, आई शो इट टू यू ऑल्सो इन माई आंसर्स, आई यूज्ड टू डू इट अ लॉट. Similar things goes for when you're explaining what course of action you will choose, because what it will ask you, क्या क्या options available है and which course of action will you take. ठीक है, अब आप कौन सा कोर्स ऑफ एक्शन ले रहे हैं, ठीक है, उसको आपको जस्टिफाई करने के लिए एथिकल टर्म्स यूज करनी पड़ेंगी. ठीक है, जो एथिकल कॉन्सेप्ट्स हैं उनको आपको डालना पड़ेगा उसके अंदर. ठीक है, एंड व्हेन यू आर एक्सप्लेनिंग दैट कोर्स ऑफ एक्शन, गो स्टेप वाइज मैनर में, कंसिडर ऑल द स्टेक होल्डर्स विच आर प्रेजेंट इन द केस स्टडी. ठीक है, कि आप पे क्या इम्पैक्ट होगा, सीनियर्स पे क्या इम्पैक्ट होगा, फैमिली पे क्या इम्पैक्ट होगा, जो विक्टिम है उस पर क्या इम्पैक्ट होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एंड लिंक योर वैल्यूज टू इट. ठीक है, केस स्टडी में मैंने वैसे बेसिकली बता ही दिया, जितना पूछा है उतना ही आपको आंसर करना है. नाउ इंट्रोडक्शन ऑफ द केस स्टडी 2 तरीके की होती है जो मैं करती थी. ऑल्सो वन थिंग, जो भी मैं बता रही हूँ टेक इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट. ठीक है, दीज आर थिंग्स विच वर्कड फॉर मी. अगर वो आपके लिए वर्क नहीं करती हैं सो प्लीज़ यू डोंट हैव टू फोर्स योर सेल्फ टू डू इट, बिकॉज आई नो 2.5 months का टाइम बहुत कम होता है. ठीक है, क्योंकि खुद मैंने दिया है तो मुझे पता है वो 2.5 months के टाइम बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है. देयर इज नॉट जस्ट एथिक्स, देयर इज a lot of things to do. ठीक है, तो if these things are things which you can incorporate, feel free to do it. I think they will only benefit. but अगर कोई भी आपको चीज़ ऐसी लगती है कि this is not something which resonates with you, it's not your writing style या जो भी, you can please leave it. ठीक है, okay, moving on back to case study. like I was saying, introduction में usually 2 type के introductions लिखती थी. either first I would explain the case study in the case study in short कि the following case study presents us with the issue of dash dash dash. ठीक है,
सेकंड, अगर एथिकल डिलेमा नहीं पूछा है किसी क्वेश्चंस में स्पेसिफिकली, तो मैं एथिकल डिलेमा बता देती थी इंट्रोडक्शन में, ठीक है। एंड थर्ड, सॉरी 3 टाइप्स, थर्ड वाज करंट बेस्ड इंट्रो, ठीक है। बहुत बार आपको ऐसे केस स्टडीज मिलेंगी जो करंट में कोई इशू चल रहा था पिछले साल या पिछले से पिछले साल, जो उन्होंने अभी पूछा है, ठीक है, इन फॉर्म ऑफ अ केस स्टडी। सो यू कैन डायरेक्टली लिंक दैट करंट की चीज आप इसमें लिख सकते हो, ठीक है, कि द फॉलोइंग केस स्टडी प्रेजेंट्स अस विद द इशू ऑफ दिस दैट वाज इन द न्यूज रिसेंटली, ठीक है। सो दैट काइंड ऑफ शोज कि यू आर अवेयर ऑफ थिंग्स विच आर गोइंग ऑन अराउंड यू। सब केस स्टडीज में नहीं होगा, अगर एक आदि में भी हो जाता है, सो इट विल लीव अ गुड इम्पैक्ट, ठीक है। दैट इज योर इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के बाद नाउ स्टेक होल्डर्स, ठीक है। स्टेक होल्डर्स में एक या दो केस स्टडीज में लिखती थी, दैट इज इट। मैं पांचों के पांचों केस स्टडीज में नहीं लिखती थी। इट वुड सेव मी गुड 20 to 30 सेकेंड्स पर केस स्टडी। उन्होंने नहीं पूछा है आपसे स्टेक होल्डर, हम ये बस एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं क्योंकि हमने कॉपीज में देखा है, इंस्टीट्यूट्स बोल देते हैं तो लिखो स्टेक होल्डर्स। बट क्यों लिखने हैं, मतलब रेलेवेंस क्या है उसका, लिखने का कोई पॉइंट होना चाहिए ना, मतलब क्यों लिख रहे हैं हम, ठीक है। सो आई वुड राइट स्टेक होल्डर्स इन दोज क्वेश्चंस जिसमें वो पूछता था कि आपका फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, या एथिकल इश्यूज, ठीक है। बिकॉज एथिकल इश्यूज जब आप लिखते हैं तो आप स्टेक होल्डर्स को ध्यान में रख के लिखते हैं, और जब आप कोर्स ऑफ एक्शन एक्सप्लेन करते हैं तो आप स्टेक होल्डर्स को ध्यान में रख के करते हैं, ठीक है। सो इट बिकम्स ईजियर टू एड्रेस दोज टू थिंग्स। अगर आपने स्टेक होल्डर्स पहले लिख दिए तो आप डायरेक्टली रेफर करके हर स्टेक होल्डर को एड्रेस कर सकते हैं। अदरवाइज आई वुड नॉट राइट स्टेक होल्डर्स, मैं अवॉइड करती थी। हो सकता है इस आंसर पेपर मैंने लिखे हूँ, बट जो मैंने फाइनल सिम्युलेटर दिया था और मैंने फाइनल पेपर दिया था उसमें मैंने 2 to 3 केस स्टडीज में मैक्सिमम लिखा था, मैंने बाकियों में आई स्किप्ड इट, ठीक है। सो इट विल एक्चुअली सेव यू लॉट ऑफ टाइम, बिकॉज आप स्टेक होल्डर्स ढूंढोगे उसके अंदर पहले, तो फिर आप वो टेबल सी बना, वो फ्लो चार्ट सा बनाओगे या कुछ बनाओगे और फिर उसको लिखोगे। सो 30 to 40 सेकेंड्स चले जाते हैं, सेव योर टाइम, ठीक है। सो आई विल डायरेक्टली गो टू द केस स्टडी। मैं शॉर्ट में बता के आई विल, ठीक है। इसमें कुछ फॉरेस्ट और ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट का है, विमेन चिल्ड्रन इंक्लूडेड हैं, डेमोलिशंस है। आई थिंक ये कुछ वो है कि फॉरेस्ट वगैरह को काट के कुछ डेवलपमेंट का है जिसमें विमेन चिल्ड्रन ये सब अफेक्ट हो रहा है, ठीक है, कुछ तो ऐसा है, ठीक है। नाउ इसमें लिखा है इवैल्यूएट ऑप्शंस अवेलेबल। जब इवैल्यूएट लिखा है तो आप मेरिट्स डीमेरिट्स लिखेंगे ऑफ कोर्स, ठीक है। विच ऑफ द अबव ऑप्शंस वुड बी मोस्ट अप्रोप्रिएट एंड व्हाई, what are ethical dilemmas being faced, and qualities of public servant required to manage these situation, ठीक है। अब इंट्रोडक्शन में शॉर्ट में इंट्रोड्यूस कर दिया कि above case presents with the issue of land acquisition for development conflicting with individual rights to his livelihood as was seen in the case of displacement of Adi tribe for infrastructure development recently in news, ठीक है। कनेक्ट हो गया, करंट से कनेक्ट हो गया, शॉर्ट में केस स्टडी पता चल गई किस बारे में हमको, ठीक है। दैट्स ऑल यू हैव टू डू इन इंट्रोडक्शन। यू कैन ऑल्सो, अगेन इसमें भी आप फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी ये सब यूज कर सकते हैं कि वायलेट कर रहे हैं हमारा फंडामेंटल राइट एंड ऑल ऑफ दैट, यू कैन इनकॉर्पोरेट दैट इन द इंट्रोडक्शन एज वेल, ठीक है। नाउ जब आप ऑप्शंस अवेलेबल लिखते हैं, ऑप्शंस अवेलेबल भी ट्राई करो कि 5-6 लाइन इतने लंबे ना लिखो, ऑप्शंस अवेलेबल भी ट्राई करो 2-3 लाइन में खत्म हो जाए, ठीक है, कि इमीडिएटली कॉल ऑफ द ऑपरेशन। अब मैंने मेरिट्स एंड मेरिट्स 2-2 लाइन, ठीक है, मतलब 2-2 पॉइंट, सॉरी, ठीक है। अब इसके अंदर व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टेल यू इज necessary for rights to life of Samantha and her co-workers, Article 21, ठीक है। एंड यहाँ पे demerits against professional duty to carry out eviction, Kantian duty, this is what I meant जब मैंने Kantian duty लिखा है, Article 21 लिखा है, this is what I meant कि you can substantiate your merits and demerits also, ठीक है। वो करेंगे threat to life of protesters due to man-animal conflict, option to retaliate with force to the protesters and detain the ones using force, ठीक है। फिर अगेन अगेंस्ट यूटिलिटेरियनिज्म, क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस, डीमेरिट्स में प्रोफेशनल ड्यूटी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट वायलेट हो गया जो हमारे हॉब्स ने दिया था, ठीक है। ऑल द ऑप्शंस दैट यू सी, जो भी डेमेरिट्स और डीमेरिट्स है, सब में कहीं ना कहीं एथिकल एलिमेंट है, एथिक्स का एथिक्स के कीवर्ड्स और एथिक्स की टर्मिनोलॉजी है, ठीक है। देन ऑप्शन 3, और 3 से ज्यादा ऑप्शंस देना थोड़ा अवॉइड करना, ठीक है, उससे ज्यादा नीड नहीं होती। दिस क्वेश्चन हैज लाइक 4 पार्ट्स, 3 or 4 पार्ट्स टू इट, यू विल नॉट बी एबल टू जस्ट डू जस्टिस टू ऑल, ठीक है। मैंने कुछ केस स्टडीज में मैंने 2 ऑप्शंस भी दिए हैं ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ स्पेस, ड्यू टू मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस, मतलब मोर नंबर ऑफ सब पार्ट्स टू इट, ठीक है। सो अवॉइड गिविंग मोर ऑप्शंस देन 3,
ठीक है, उसके बाद थर्ड, यूजुअली हम थर्ड सबसे सेंसिबल वाला देते हैं जो हम पिक करते हैं कि यू अर्ज द प्रोटेस्टर्स टू कम्युनिकेट बाय इन्वॉल्विंग लोकल लीडर्स एंड परसुएडिंग थ्रू ईथोस, लोगोस एंड पैथोस, एरिस्टोटल्स परसुएशन। ठीक है, अब इसका आपने मेरिट्स, डीमेरिट्स, मिडिल पाथ आ गया, जस्टिस आ गया जिसमें प्लेटोज वर्च्यूज आ गया, डिले इन इवेक्शन, फेलियर टू गेट एटसेट्रा। ठीक है, फिर ऑप्शन 3 सीम्स द मोस्ट वायबल ऑप्शन। ठीक है, अब एथिकल डिलेमास फेस था। एथिकल डिलेमास में भी मैंने ऐसी एक लिस्ट बनाई हुई थी एथिकल डिलेमास की, मिक्स एंड मैच करके उसको डायरेक्टली टक 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 लिख दिया। ठीक है, सो यूजुअली क्योंकि आपके एथिकल डिलेमास यही सारे होते हैं, इन्हीं चीज़ों के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। तो एनवायरनमेंट वर्सेस इकोनॉमी, ड्यूटी वर्सेस राइट्स, प्रोफेशनल वर्सेस पर्सनल एथिक्स, रूल ऑफ लॉ वर्सेस मॉरल डिसीजन मेकिंग, एथिकल रिलेटिविज्म वर्सेस एथिकल एब्सोल्यूटिज्म, mobocracy versus democracy, right to life of individual, right to life and livelihood versus right to freedom of speech and expression, protection of vulnerable versus curbing the dissenters. ठीक है, so I think this is something related to your menstruation and periods का issue. ठीक है, so वही शॉर्ट में मैंने यही बताया हुआ है। अब इसको आप कुछ करंट से लिंक नहीं कर सकते हो। वी कुड हैव लिंक्ड इट टू, अब आई थिंक ये पूछा इसलिए था बिकॉज वन ऑफ द पार्लियामेंटेरियन मेड अ कमेंट रिगार्डिंग मेंस्ट्रुअल लीव एंड इट क्रिएटेड अ होल issue, but I just thought it would be difficult to explain it in the intro, so I kind of left it, but you can do it if you want. So मैंने सिर्फ इशू एक्सप्लेन कर दिया कि इशू ऑफ टैबू एंड डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर सराउंडिंग menstruating women, alienating them from mainstream society due to prevalence of societal norms and culture. ठीक है, entire case study summed up in 4 lines. ठीक है, easy effective intro. अब इसमें पूछा गया क्या है, suggest a course of action Megha can take to sensitize her village community without appearing disrespectful or confrontational. Now इसके अंदर उन्होंने आपसे evaluate नहीं पूछा है, options नहीं पूछे हैं, सीधा पूछा है कि आपका course of action क्या होना चाहिए। ठीक है, so don't waste your time unnecessarily giving options, उनके merits बता रहे हो, demerits बता रहे हो, it's not needed. ठीक है, you can directly start with the answer itself. ठीक है, कि course of action क्या होगा उसका। ठीक है, now whenever you're writing a course of action, no, go very sequentially. ठीक है, try and not be random. ठीक है, कि पहले आप, I'll just explain with this only. ठीक है, कि you understand and analyze the root cause कि क्या है टैबूज का और वो क्यों ओरिजिनेट हुए। ठीक है, देन यू फाइंड अ रैशनल एक्सप्लेनेशन फॉर ईच टैबू। ठीक है, कि फॉर एग्जाम्पल जैसे बोलते हैं कि मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन को अचार नहीं छूना चाहिए। ठीक है, तो वो क्यों ओरिजिनेट हुआ और उसका रैशनल एक्सप्लेनेशन क्या है। ठीक है, वो हाइजीन पर्पसेस से बोलते थे पहले के टाइम पे। ठीक है, क्योंकि वी डिड नॉट हैव अ लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी और वी डिड नॉट हैव द राइट मटेरियल्स टू डील विद मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, बट नाउ वी डू, सो वी डोंट हैव टू फॉलो दोस टैबूज एनीमोर। ठीक है, तो यू फाइंड रैशनल एक्सप्लेनेशन फॉर ईच। Then charity begins at home and hence begin with educating one's own family. ठीक है, Ratan's family and others friends. ठीक है, start from your home, spread it उसके बाद। ठीक है, then increase awareness by inclusion of local leaders in the drive by sensitizing them regarding the issue. Understand किया आपने root cause, explanation ढूंढनी, अपनी family को किया, अब आप society को कर रहे हो। ठीक है, then educating men and women regarding menstrual health being a natural phenomena through audio visual aids. अब आप कैसे कैसे कर सकते हो उसको सोसाइटी के अंदर। ठीक है, तो ऑडियो विजुअल एड्स हो गया, कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग, दिस इज अ साइकोलॉजी टर्मिनोलॉजी। ठीक है, सो थ्रू जेंटल परसुएशन, थ्रू इंक्लूजन ऑफ हेल्थ सेंटर्स। नाउ इवन इफ यू आर, वन थिंग आई विल जस्ट मेंशन, अगर आप अपने ऑप्शनल की टर्मिनोलॉजी यूज भी कर रहे हो, मेक श्योर यू एक्सप्लेन इट। ठीक है, डोंट जस्ट वेगली पुट इट देयर। जैसे मैंने कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चर लिखा तो उसका मतलब है कि परसुएशन के थ्रू आप उसको चेंज करना चाह रहे हो। ठीक है, थ्रू इंक्लूजन ऑफ हेल्थ सेंटर्स इन द ड्राइव, एग्जाम्पल यूजिंग पैम्फलेट्स, फेस टू फेस इंटरेक्शन एक्सेट्रा। शॉर्ट टर्म मेजर, अब आप लॉन्ग टर्म में क्या करोगे। ठीक है, आप गवर्नमेंट पॉलिसीज के अंदर लेकर आओगे, मतलब लेना चाहोगे, एडिक्वेट इम्प्लीमेंटेशन करोगे, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग कराओगे ऑफ मेन स्ट्रीम सोसाइटी, बिल्डिंग विमेन स्कूल्स टू इंक्रीज एजुकेशन एंड विमेन वॉशरूम्स। ठीक है, अब सबसे ब्रॉडर पॉइंट्स की स्टीरियोटाइप्स ब्रेक करो थ्रू जेंडर सेंसिटाइजेशन, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट टू सेट एग्जाम्पल फॉर अदर्स टू फॉलो। So you get what I mean when I talk about sequentially talking about the steps to follow. ठीक है, great. Now ethical principles which should guide, again if you have your ethics का एक repository of keywords, you directly just put it: constitutional morality, sensitivity, emotional intelligence, respect,
विजडम एंड प्रूडेंस, यूटिलिटेरियनिज्म, सोबम बोनम जो होता है, दिस इज ऑल्सो अनदर वर्ड फॉर यूटिलिटेरियनिज्म. ठीक है. सोशल कॉन्ट्रैक्ट, कंपैशन, एम्पथी, वही सारी चीज़ है. ठीक है. देन इट टॉक्स अबाउट रिलेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन टू ह्यूमन राइट्स. इसमें आप अपना इजीली आर्टिकल्स वगैरह डाल सकते हो. ठीक है. आर्टिकल 21 हो गया, राइट टू एजुकेशन. ठीक है. 14 दैट्स 25. 14 ठीक है, इसके अंदर डाल सकते हो. इसमें DPSP सारी चीज़ें मैंने डाल दी हैं. ओके, आई होप इट हेल्प्ड in whatever way possible, and all the best to you guys.